فرینڈس، اردو میں مزید اچھی ویڈیو روزانہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو انفو کارنر کو سبسکرائب کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیے گئے ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کیجیے اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے۔ اس پر کلک کرنے سے آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے گی اور آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے روزانہ دیکھ سکیں گے۔ فرینڈز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اگر گھر میں آپ کے چھوٹا بچہ ہے جو کرولنگ کرتا ہے یا چلنے کی کوشش کر رہا ہے، اس عمر کا بچہ ہے، تو آپ اس کے لیے کیا حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں اگر وہ آگ کے پاس جا رہا ہے یا کوئی چیز نکل رہا ہے، یعنی ایسی صورت میں آپ کیا کریں وہ آپ آج کی ویڈیو میں جان سکیں گے۔ تو فرینڈز، ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بچوں کے لیے محفوظ ترین بستر کیا ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ عام بستر کی چادر یا کوئی اور چادر کپڑا لے کر اس کا جھولا بھی بنا لیتے ہیں، لیکن کپڑے کے جھولا نما یہ بستر کسی بھی صورت میں بچے کے لیے محفوظ نہیں ہو سکتے، کیونکہ بچہ اس میں گر جانے کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ڈوری یا اس کے بغیر اسے جس طرح لٹکایا جاتا ہے وہ غیر محفوظ ہے۔ بہتر یہی ہے کہ بچے کے لیے اس کا خصوصی چھوٹا سا پلنگ ہونا چاہیے جو اطراف سے اس طرح محفوظ بنا دیا جائے کہ بچے کے گرنے کا خطرہ نہ رہے۔ بستر بناتے وقت یہ خیال بھی رہنا چاہیے کہ اس پر کوئی ایسی چیز نہ پڑی ہو جس سے بچہ بے خیالی سے اپنی سانس میں رکاوٹ ڈال سکے۔ مومی لفافہ شاپر بچے کی پہنچ سے اپنے اس کو دور رکھنا ہے، کیونکہ انہیں بچے کسی بھی وقت اپنے چہرے پر لپیٹ سکتے ہیں، تو اس سے دم گھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ بستر پر تکیہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بچہ اسے اپنے چہرے پر کھینچ سکتا ہے۔ جو بچے کا بستر بناتے وقت آپ نے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر کوئی کھلونا بھی جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جس سے ڈوری یا ربن بندھی ہو، کیونکہ بچہ اسے اپنے گلے کے گرد اس کا گھیرا تنگ کر سکتا ہے، کیونکہ بچے کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کس طرف کو کھینچے، کیونکہ اگر وہ اپنے سے اس کو دور کرنے کی کوشش میں خود ہی کھینچ کے خدا نخواستہ اپنے لیے نقصان دہ اس کے لیے ہو سکتا ہے، تو ایسے کھلونوں سے بھی بچے کو اپنے دور رکھنا ہے۔ کھانے کے وقت بچے کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ کی غیر موجودگی میں کسی بھی وقت فیڈر بچے کی سانس میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ بچے کی پہنچ میں آپ نے کوئی ڈوری یا رسی بھی نہیں رہنے دینی ہے، یعنی بچے تک یہ چیزیں نہ پہنچ سکے یا بچہ ان تک کرولنگ کر کے نہ پہنچ پائے۔ بچہ ہر چیز کو منہ میں ڈال کر سیکھنے کے عمل کی ابتدا کرتا ہے، یعنی میں نے ہم سب نے آبزرو کیا ہے، بچہ جو چھوٹا اسپیشلی اس نے ہر چیز منہ میں ڈالنی ہوتی، تو کوشش کریں کہ جیسی اس کے جو چیزیں ہیں جو اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، ان کو اس بچے سے دور رکھیں۔ ان میں بٹن ہو سکتا ہے، سکے، چھوٹے چھوٹے کھلونے کسی بھی وقت ان کی سانس کے نال میں پھنس سکتے ہیں۔ ہر وقت تو انسان بچے پر نظر نہیں رکھ رہا ہوتا ہے، یعنی گھر کے کام میں بھی کہیں نہ کہیں بزی ہوتا ہے، تو اسی کوشش کریں کہ ان چیزوں کو بچے سے دور رکھیں۔ اور ڈھیلے ڈالے حصوں والی گڑیاں ہیں جن کی آنکھیں بچے نگل سکتے ہیں، انہیں کھیلنے کے لیے نہیں دینی چاہیے۔ اس طرح مونگ پھلی یا اس قسم کی اور اشیاء نہیں دینی چاہیے، کیونکہ وہ انہیں سانس کی نالی یا نتنوں میں اس کے پھنس سکتے ہیں، تو اس بچے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بچے کی سانس کی نالی میں اگر کوئی چیز پھنس جاتی ہے، اٹک جاتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب تک پھنس سے جانے والی شے آپ کو نظر نہ آ رہی ہو اور آپ کی انگلی اس سے ڈھونڈنے یا نکالنے کی کوشش میں وقت ضائع نہ کریں۔ ٹانگوں سے پکڑ کر بچے کو الٹا لٹکائیں اور کندھوں کے درمیان چھاتی پر اسے ہلکے ہلکے چپٹ ماریں۔ اگر پھنسی ہوئی چیز باہر نہ نکلے تو پھر یہ عمل دوبارہ کریں۔ اگر کافی کوشش کے باوجود بچے کی سانس بحال نہیں ہوتی ہے، چیز باہر نہیں نکلتی ہے، تو اس کے پیٹ پر زوردار جھٹکا دیں۔
ये कोशिश सांस की नाली में फंसी हुई चीज को बाहर धकेल देगी। अगर बच्चे का सांस घुट जाना जाए तो क्या करना चाहिए? यानी सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर फंसती है तो आपने ये मत करना, और अगर सांस घुट जाए, खुदा ना खास्ता अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, तो जिस चीज से बच्चे की सांस घुटी होती है उसे फौरन उसे हटाएं, और अगर सांस रुक चुकी है तो उसके मुंह जोड़कर उसे मसनूई सांस दें। ये सांस देने का एक मखसूस तरीका है जिसे आपको सीख लेना चाहिए। यानी फर्स्ट एड में ये आप सीख सकते हैं मेथड के माउथ टू माउथ सांस, अपने फर्स्ट एड का मेथड जो भी है वो आप सीख लें। बच्चों के जलने का अगर खतरा हो, खतरा भी क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है घरों में, यानी पर छोटे बच्चे क्रॉलिंग करके उस चीज़ तक पहुंच जाते हैं, और ये अक्सर देखा भी गया है कि अक्सर सुना गया है कि बच्चा जो है फलां का बच्चा जो जल गया, उस पर दूध गिर गया, उस पर गर्म पानी गिर गया। वजह ये है कि अगर माँ कहीं पे बिजी होती है काम में तो बच्चा क्रॉलिंग करके उस चीज़ तक पहुंच जाता है। तो ये भी सारी बातें इंसान ने अभी सोच नहीं सकता है, तो खुदा ना खास्ता अगर ऐसी चीज़ हो जाए तो आपने क्या करना है। तो छोटे बच्चों को बिल्कुल इल्म नहीं होता है कि गर्म पानी कैतरी या इस्त्री कितनी खतरनाक हो सकती है। तो बच्चा किसी भी वक्त उसे अपने आप को इसे डरा सकता है, किसी भी वक्त ऐसा मत जान भी ले सकता है, क्योंकि अगर जलने का परसेंट ज़्यादा हो तो फिर ज़ाहिर बात है जान जाने का भी खतरा होता है। तो केतलियाँ, फ्राई पैन जैसी चीज़ें जो है वो बच्चों से दूर रखें। ज़हन में रहे कि उबालने के आध घंटे बाद भी पानी बच्चे का जिस्म जो है वो जला सकता है। यानी आधे घंटे तक भी अगर गर्म पानी पड़ा हुआ है तो फिर भी वो बच्चे की स्किन क्योंकि सेंसिटिव होती है, तो यानी चांसेस होते हैं कि वो पड़ा हुआ भी जो है वो बच्चे के जिस्म को जला सकता है। बिजली की कहते कि तार हो सके तो इंतहाई आप मुख्तसर से रखें। हमेशा इस्तेमाल के बाद लपेट दें। बच्चे को गोद में लेकर कोई गर्म चीज़ें ना पिएं, और कोई भी गर्म यानी चाय कॉफ़ी कुछ भी पी रहे हो तो बच्चे के सर के ऊपर लेकर कभी ना बैठे। यानी बाज़ दफ़ा ये तफ़ील करते हुए माएँ चाय कॉफ़ी पी रही होती हैं तो ऐसा कभी ना करें। मेज़ पोश में इंतहाई अपने ये भी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। ये टेबल के जो कवर्ड शीट वगैरह होती हैं, क्योंकि बच्चा उठने की कोशिश में वो खींच सकता है अपने ऊपर, ठीक है, और टेबल पर पड़ी हुई सारी चीज़ें जो बच्चे के ऊपर आकर गिर सकती हैं। और अगर गर्म पानी या चाय का कोई बर्तन मेज़ पर पड़ा होगा तो वो भी आसानी से बच्चे के ऊपर गिर सकता है। यानी चांसेस ये तो अभी घर की आप अपने घर को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती हैं कि आपका टेबल यानी जहाँ जहाँ क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको खुद समझना होगी कि बच्चे के लिए कौन कौन सी जगहों पे यानी खतरा हो सकता है। टेबल के पास, चूल्हे के पास, उसके खुद के बिस्तर पर, ये अपने सारी इसकी सराउंडिंग समझ के और ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चे से दूर करने की कोशिश करनी है। अगर चूल्हे पर कोई बर्तन पड़ा हो तो बच्चा ये देखने के तजस्सुस होगा, उसको क्यूरोसिटी होगी कि इसमें क्या है। तो ज़ाहिर बात है अभी बच्चा है तो वो समझने की कोशिश कर रहा होता अपनी सराउंडिंग को, घर में चीज़ों को। तो किसी भी वक्त इसका हैंडल जो है वो खींच सकता है। इसे हैंडल हमेशा अंदर की तरफ रखें ताकि बच्चा इस तक ना पहुंच पाए, ठीक है। ये बात दफ़ा होता है कि माँ बच्चे को क्रॉलिंग के लिए भी छोड़ देती है, साथ काम कर लेती है। ये नहीं, अभी ये तो घर की सिचुएशन पे है, जैसे किसी का चल रहा होगा। अगर किसी के पास हेल्प हो तो वो तो ज़ाहिर बात बच्चे को वहाँ छोड़ सकती हैं, जिनके पास दादी वगैरह ये जो भी रिश्ते हो। लेकिन जिनके पास नहीं है, वो इस तरह अगर सिचुएशन हो जाती है तो हैंडल जो है अपने बर्तन का जो है वो अंदर की तरफ रखना है ताकि बच्चा उस तक ना पहुंच पाए। नहाने के वक्त में कई बार ऐसा हो चुका है कि बच्चा गर्म पानी में डूबकर मर गया। तो इसी सिलसिले में इंतहाई एहतियात, बच्चे को नहाने के टब में कभी अकेला ना छोड़े। ये तो आपने सुपरविजन रखनी है कि बाज़ दफ़ा ये भी देखा गया है कि वो टब में बच्चे को उठा दिया जाता है तो लोग अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कभी बच्चे को अकेला ना छोड़े या उसके ऊपर निगरान कोई सुपरविजन के लिए छोड़े, क्योंकि सिर्फ गर्म पानी से झुलसने का ही नहीं बल्कि डूबने का भी डर होता है। तो बच्चा सिर्फ 2 इंच गहरे पानी में भी डूब सकता है। यानी ये देखें, एक
एडल्ट या एक बड़ा बच्चा या इंसान जो है वो खुदा ना खास्ता अगर वो पानी लेकिन उसमें दरिया या नहर में डूबने का डर होता है, लेकिन बच्चे को सिर्फ 2 इंच गहरे पानी में भी बच्चा जो है वो डूब सकता है। तो आपने ज़रूर इसके बारे में केयर करनी है। हमेशा गर्म पानी डालने से पहले टब में ठंडा पानी डालें, क्योंकि जब आप बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे रहे होंगे तो वो किसी भी वक्त अचानक अपना पाँव जो है पानी में डाल सकता है। तो बच्चे पर पानी डालने से पहले उसका टेम्परेचर जो है उसका अंदाज़ा ज़रूर करें। पानी इंतहाई आरामदेह हद तक नीम गर्म होना चाहिए और फिर बच्चे को पानी में अकेला कभी ना छोड़े। जलने की सूरत में फौरी तौर पर क्या आपको करना चाहिए? तो इसके लिए जवाब ये है कि कुछ मिनट के लिए बच्चे को ठंडे पानी में या नलके के पानी के नीचे रखें। तो ये ज़रूर करें, यानी फ़ौरन आपने पहला यही होना चाहिए कि इससे ये होगा कि जिल्द का दर्जा हरारत जो है वो कम हो सकेगा। यानी वो जो गर्मी जो जलने की वजह से अंदर की तरफ स्किन में जा रही होती है ना, उसके चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो फिर बर्न का जो परसेंट है वो कम हो जाएगा, और जितना अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो वो उतना ही स्किन के अंदर हरारत गर्मी जाके जिस्म को झुलसा देगी और उसके परसेंट जो है वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहा जब सुना जाता है कि 90% 60% जला हुआ इंसान, तो जाना खासा अगर इस परसेंट तक के लोग जो होते हैं उनका बचना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आपका पहला फर्स्ट एड ये होना चाहिए कि आप फ़ौरन बच्चे को नल के नीचे कर दें। पाइप है जैसे भी आपके पास घर में सहूलत है आप वैसे ही करके पानी के नीचे बच्चे को कर दें। इससे ये होगा कि अंदर की तरफ जो सेक जिसको कह लें वो सेक अंदर स्किन में, क्योंकि जिल्द जो है वो नाजुक है, तो सेक जो है वो अंदर नहीं जा पाएगा, तो जलने के परसेंट जो है वो फीसद जो है वो कम हो जाएगी। और तंग पहनावे जैसे स्कार्फ, बेल्ट या कोई जेवर उतारें और जले हुए हिस्से को किसी साफ कपड़े मसलन रुमाल या सराहने के गिलाफ से आप ढांप सकती हैं। इसी तरह सोजिश या स्वेलिंग का खतरा कम हो जाता है। मक्खन जैसी कोई शय जले हुए हिस्से पर ना लगाएं, क्योंकि अस्पताल में किसी भी इलाज से पहले इसे हटाना इंतहाई ज़रूरी है। रुई या इस किस्म की कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें ज़ख्म पर, वरना वो ज़ख्म के साथ चिपक जाएगी, उसे हटाने में भी तकलीफ होगी इस बच्चे को या इंसान को। अगर छाले बन जाए तो इन्हें फोड़ें मत। छाले का एक छाले जो है एक हिफाजती झिल्ली की तरह होते हैं। इनमें सुराख हो जाने से जरासीम का रास्ता खुल जाता है और सोजिश और स्वेलिंग ज़्यादा हो सकती है। तो इन बातों को ज़रूर ज़हन में रखें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इन फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत शुक्रिया। और साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, उसमें बात अच्छी लगती है, नॉलेज वाली बात लगती है, लगता है कि आपको आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए, तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ वीडियो को फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और प्लीज़ अगर वीडियो में कोई बात अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी ज़रूर करें। अगर वीडियो के हवाले से कोई बात कहना चाहते हैं, कोई फीडबैक अपना देना चाहते हैं, फिर राय का इजहार करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। और साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई वीडियो बनाया जा सके तो आप वो भी लिख सकते हैं, ताकि आपके लिए वो वीडियो या टॉपिक आपके लिए बनाया जा सके। और फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।